السلام علیکم، گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب۔ السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم عائشہ، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر، ہم تو ٹھیک ہیں اور لوگ بھی خوش ہیں کیونکہ فائنلی آج اسلام آباد کھل گیا ہے۔ لوگوں کو بہت عرصے کے بعد اپنے دفاتر میں جانے کا موقع ملا، خوش باش نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا آج کیسے سٹارٹ لیں؟ ابھی جنگ میرا خیال ہے پس منظر میں کچھ چلی گئی ہے تو ہم بھی اس کو لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ آج ہم ایگزیکٹلی میں بھی یہ کہنے والی تھی کہ آج ہم جو لوگوں کو درپیش مسائل ہیں جو جنگ کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، کیوں نہ ہم ان کو اجاگر کریں اور ان پہ بات کریں۔ تو آپ کے پاس کیا خبریں؟ فی الحال تو گرمی آ رہی ہے، تو اور گرمی میں ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ اور بجلی مہنگی۔ بالکل، تو اسی والے سے ایک دلچسپ خبر ہے کہ عائشہ، عوام تو کئی سالوں سے چیخ ہی رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے، جی اب نوبت یہ آئی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی چیخ پڑے۔ ریئلی؟ اوہ مائی گاڈ! لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کچھ کرنے کے بجائے چیخ کیوں رہے ہیں؟ بھائی آپ تو گورنمنٹ ہو۔ گورنمنٹ کے پاس تو پورے اختیارات ہوتے ہیں۔ آج سینٹ کمیٹی کا پاور کمیٹی کا اجلاس تھا، جی شاید ایم اے کمیٹی ہوتا ہے شاید، اوکے، تو اس میں جو پاور ڈویژن آیا ہوا تھا اس کو ممبرز پڑھ گئے کہ آپ کیا کر رہے ہو، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے جبکہ ہمارے پاس بجلی بنانے کی کیپیسٹی مکمل ہے۔ تو ان کا جی وہ ایل این جی نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس میں سے ایل این جی نہیں آ رہا، تو ایک مجھے یہ فگر یاد نہیں رہا کہ کتنی شارٹ فال پہ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ آپ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو اور پیسے پورے آپ ان کو بھی دو گے اور عوام سے بھی لو گے۔ کامل علی آغا اپنا جو پارلیمنٹ لاجز کا بل اٹھا کے لے آئے، یہ لوگ یہاں کم ہوتے ہیں نا، بند رہتا ہے، تو دکھا رہے تھے کہ 109 یونٹ کا بل 11,000 ہے۔ اوہ مائی گاڈ! اور اس پہ ٹیکسز کا ایک انبار لگا ہوا ہے، فلانا اس نے کہا، وہ بجلی کے کم بل ہے، ٹیکسز کا بھرمار ہے۔ کامل علی آغا نے کہا کہ یہ اس میں صرف سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا رہ گیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے وہ لگا، وہ بھی جو ادر ٹیکس ہوتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے یہ انہیں کو جاتی ہوں گے سر۔ یہ جو اس میں کامل علی آغا صاحب یہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں آپ ایک جگہ لکھا ہوگا فردر چارجز، ایک جگہ لکھا ہوگا ادر چارجز۔ یہ ایک دفعہ یہ مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی ٹیکس ہے، یہ دونوں ایڈ ہیں، ہاں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ابھی قطر نے ایل این جی جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے پاکستان کو، اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2 مہینے پہلے کی بات کر لیں، جب سولر لوگوں نے دوبارہ سے لگوانا شروع کیا تھا اور اس پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا تھا، تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان میں بجلی وافر مقدار میں ہے، اور اگر اس طرح سولر لگوائے جائیں گے تو وہ نیشنل گریڈ کو جو ہے وہ بجلی کو نقصان پہنچے گا، اس لیے انہوں نے ٹیکسز لگا دیے تھے۔ آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاور ڈویژن یہ بات کیوں کر رہی ہے کہ پاکستان میں بجلی نہیں ہے، حالانکہ پاکستان میں بجلی ان کے مطابق 2 مہینے پہلے بہت وافر مقدار میں جو آئی موجود پی تھی۔ پیز لگی ہوئی ہیں ان کی کیپیسٹی اس سے کہیں زیادہ جتنی پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن معاہدہ اتنا عجیب و غریب ہوا تھا کہ پاور کمپنیز بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان کو پیمنٹ پوری ہوگی، تو انہیں کیا تکلیف ہے کہ وہ 100% بجلی بنائیں؟ وہ 30% بناتی ہیں، 100% کے پیسے لیتی ہیں۔ لیکن سر میں تو حیران ہوں کہ ایسے معاہدے کرتا کون ہے؟ پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا سودا کون کرتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آئی پی پیز بجلی بنائیں یعنی کام کرو نہ کرو آپ کو تنخواہ ملے گی۔ اس میں اب یہ معاہدہ کون کرتا ہے؟ اس میں میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن میں نے خبریں سنی ہیں یہ، اور ہوگا بھی ایسے ہی کہ 30% کمپنیز جو ہیں حکمران طبقے کی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دوسرے تیسرے، اور پاکستانی سرمایہ کاروں کی ہیں، بہت کم پرسنٹیج جو ہے جو فارنرز ہیں۔ سر یہ سرمایہ کار اور یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ جو ہے اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پہ غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ پھر خودکشیاں کر رہے ہیں، ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، پھر دکانیں، روزگار بند ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جب یہ دکانیں بند تھی لوگ اتنے پریشان تھے اور وہ دہائی دے رہے تھے خدا کے لیے راستے کھول دیں، ہمیں کاروبار کرنے دیں، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ ڈیلی ویجز متاثر ہوا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بجلی گیس کے بل تو بھرنے ہی ہیں سر، آپ وہ استعمال کریں نہ کریں بل تو آپ نے دینے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، نہ حکومت نے ہمیں کوئی سبسڈی دی، نہ کوئی ریلیف دیا، ہمارے کاروبار بند کر دے تو ہم کہاں سے کریں گے؟ نہیں، ریلیف پیکج ملنا چاہیے، کم از کم کوئی بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ بالکل درست بات ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ اگلے 5 سال کے دوران نجی پاور کمپنیز کے ساتھ سارے معاہدے اپنی تکمیل کر لیں گے، مکمل ختم ہو رہے ہیں، جبکہ 6 کمیٹی ختم ہو رہی ہے، جبکہ 6 پاور کمپنیز کے ساتھ معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں ابھی فوری طور پہ۔ لیکن اس کا عوام کو فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ فائدہ بجلی مہنگی ہی رہے گی، اور یہ فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر کوئی عوام دوست پالیسی حکومت بنائے
सारी दुनिया अपने अवाम के तरले कर लिए कि सोलर पैनल लगाओ, यहाँ लोग लगाना चाह रहे हैं तो भाई उनको फैसिलिटेट करो, सोलर पैनल लगाने दो। आप बगैर किसी 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट के आपको अवाम से फ्री बिजली मिलना शुरू हो जाएगी या सस्ती बिजली मिलना शुरू हो जाएगी, और उससे जो गरीब लोग हैं जो फुल सोलर नहीं लगवा सकते उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा सर, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला है, क्योंकि वो जो सालसी के किरदार अदा करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही थी और उनकी तमाम एनर्जीज जो थी वो उस तरफ ही थी। अब गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पर जो पाकिस्तानी आवाम है वो इसलिए तो खुश हैं कि चले इंटरनेशनली हमारा इमेज अच्छा जा रहा है या हम लोग सालसी का किरदार अदा करें, लेकिन जो अंदरूनी मसाइल हैं उनकी वजह से इतनी नापसंदीदा हो चुकी है गवर्नमेंट अवाम में, अवाम शदीद क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ फ्राहम करने में कामयाब नहीं होती या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाती तो आप यकीन रखें कि अवाम ने फट पड़ना है और बाहर आ जाना है प्रोटेस्ट के लिए। पता नहीं, शायद मुझे लगता है हुकूमत इंतज़ार कर रही है, ये ऐसी बात कर नहीं सकता कि अवाम का लावा फटे तो फिर ये जो है उसको कोई रिलीफ देना शुरू करें। उससे पहले अगर देखें तो ज़्यादा सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड कर दिया गया ना हर चीज़ को। अब पहले ये होता था कि ज़रा सी भी कीमतें वगैरह बढ़ती थी, अवामी प्रेशर आता था तो रोल बैक हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब जो एहतजाज करता है दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है, कोई बाहर आता है उस पर केसेस कर दिए जाते हैं, कोई प्रोटेस्ट करने आता है उसको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। तो लोग अपनी बका का जो है ना वो जंग लड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। इतना फंसे हैं कि वो चाहते हैं कि भाई जो इधर से दो की रोटी वो कमा पा रहे हैं वो। और यहाँ पे हम आपको एक बात बताते चलें कि जो हम तज़िया करते हैं वो बिल्कुल अवामी नौयत का होता है, और जंग के हवाले से भी हमने जितने भी अपने तज़िये किए सर वो एज इट इज़ और एक्यूरेट रहे। हमने बात की थी कि जी हमें ये जो मुज़ाकरात हैं ये हमें कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आप देखें कि वो खटाई में पड़ गए हैं और फिर ट्रम्प साहब जो है उन्होंने कह दिया है कि जी आप हमें कॉल कर लें। ये था कि नो पीस टॉक्स एट द मोमेंट। यस, फिलहाल कोई वो नहीं हुए, और वो नहीं हुए। और आपने देखा बाकी लोग जो हैं वो कभी उसको अमेरिकी हुकाम को बुला रहे थे और वो मुआहदे तैयार थे और हफ्ते के दिन टेबल सजा रहे थे। बिल्कुल, हमने बता दिया था कि क्योंकि वो नहीं हो पाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन और अब ये आयशा ये फैक्ट है कि ईरान ने एक गोल्डन चांस जो है ना वो मिस कर दिया है अपनी आवाम को प्रॉस्पेरिटी देने का, अपनी सैंक्शंस हटवाने का और अमन लाने का। और अब उनके वजीर खारजा साहब खित्ते के ममालिक के दौरे करते फिर रहे हैं कि हमारे साथ एक इत्तेहाद बना लो। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन कौन सा मुल्क इनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बनाएगा। लेकिन सर एक्चुअली बात मैं आपको बताती हूँ, बात ये है, मैं 1 मिनट और लूँगा, लेकिन मैंने ये सुना है कि एक ऐसा कोई एग्रीमेंट तैयार हो रहा है जो सिर्फ ईरान के साथ नहीं होगा, पूरे खित्ते के साथ होगा, इस खित्ते के अमन के लिए। और वो अमेरिका को माइनस करके वो कोई एग्रीमेंट आपस में ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि सब तक कामयाब होते हैं। सर इसी हवाले से मैं बात करना चाह रही थी कि जिस तरह जो ईरान है वो पहले पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के बाद ओमान गया, ओमान के बाद फिर पाकिस्तान के साथ मशावरत की, और अब वो मास्को में मौजूद हैं अब्बास अरागची साहब। बेसिकली इनका जो प्लान है वो यही है कि अबनाए हुर्मुज़ पे जो किसी का भी कब्जा ना हो, और ये जो अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ के नाकाबंदी करके बैठा हुआ है इसको ख़त्म किया जाए, और इस पूरे खित्ते का यानी कि जो अबनाए हुर्मुज़ की जो जितना भी एरिया है उसमें सऊदी अरेबिया, अमान, पाकिस्तान और ईरान, इन सब की कोलैबोरेशन के साथ कोई अच्छा सा जी मुआहिदा हो, और इसको चलाने के लिए इनके अपनी फोर्सेस हों या इनके अपने कोई प्लान्स हों, उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि हम लोग मुज़ाकरात की तरफ आ सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो तजावीज़ दी गई थी वो भी यही तजावीज़ दी गई थी, और पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ईरान के लिए बाइसे एतमाद है बल्कि अमेरिका के लिए भी बाइसे एतमाद है। और अब देखना ये है क्या ये तजवीज़ जो है ये सदर डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर होगी। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें सर, उनके ऊपर भी देखिए, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, हमला हुआ है, लेकिन वो सेफ रहे हैं। वो भी कल पूरी दुनिया के लिए खबर बनी हुई थी, और इससे ना सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक सिंपैथी मिली है, मुझे लगता है कि सिंपैथी मिली है। वो मुझे लगता है कि इसका मकसद भी यही था। तो मुझे तो लग रहा है प्री प्लान करवाया होगा, जिस तरह वो नापसंदीदा शख्स करार दिए जा रहे थे पूरी दुनिया में, उसकी मजम्मत कर रही हैं, लेकिन आज़ाद मीडिया यही कह रहा है कि भाई ये ड्रामा था। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इंटरेस्ट भी हुआ है, मतलब उस हाल तक पहुंचे भी नहीं थे। जो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी हो सकती है इतनी शदीद जी, उसको इतनी आसानी से कोई एक भी बंदा वायलेट करके अंदर आ जाए और फायर भी सर वो बता रहे थे किसी निजी होटल में था।
निजी नहीं होटल नहीं में मेरा था। नहीं खरीदा। अच्छा, नहीं निजी होटल में था। भी था तो जहाँ निजी होटल में बताया ये जा रहा है कि वो जो वो एक टीचर है जिसने अटैक किया था, ठीक है, और वो टीचर था, बस वो जुनूनी था शायद। निजी होटल में भी था तो जहाँ प्रेसिडेंट आ रहा है अमेरिका का, उसकी सिक्योरिटी। हमारे यहाँ कोई अगर किसी होटल में कोई गेस्ट है ऐसा वीआईपी, तो हमारी पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज एक एक कोना कोना उसका चेक करती हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी करती हैं उसको, फिर उसके बाद कोई आ सर जो सकता है। इतलात जो मैंने पढ़ी हैं, जो मेरी नॉलेज में आई हैं, वो ये है कि वो वहाँ पे वो जो टीचर था वो वहाँ पे रह रहा था, मतलब होटल में स्टे किया हुआ था उसने। और आपको पता है फॉरेन मैं कंट्रीज आपको में बताऊं- टीचर्स को तो वैसे ही वैल्यू देते हैं। मैं आपको हो सकता है कि बताऊं, वहाँ पे वो मैं रिहाइश आपको पजीर बताऊं हो। वैल्यू देते होंगे अपनी जगह। जब हमारे यहाँ मेहमान आ रहे थे तो हमने दोनों होटल्स मुकम्मल खाली करवा लिए थे। सर हमारे तो भी सिक्योरिटी का चाहता है ना, हमारे तो ऑलरेडी आपको पता है क्या चलें। मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो तो अमेरिका को नहीं फेस करने पड़ रहे। हाँ, खैर वहाँ पे सिक्योरिटी का इतना टाइट वो नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो आपको लेकिन पता है शायद कि अब हो जाए। प्रॉक्सीज जो है वो बड़ी एक्टिव हो जाती है हो सकता है वो पाकिस्तान की से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दें, सिक्योरिटी की भी और फायरिंग की भी। में भी। उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसने पर्सनल कैपेसिटी में सब कुछ किया है। जिस तरह ईरान या पूरी दुनिया को सदर डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसियां डिस्टर्ब कर रही हैं, हो सकता है वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो और वो सबके लिए आसानी पैदा करने के लिए काम खुद करने के लिए लगाओ। तो खैर उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रम्प को सोचना चाहिए कि लोग जो है वो उनसे इस कदर जो है वो नफरत करने लग गए हैं। उनको अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए और दुनिया के अमन को बहाल करने में अपनी नाकिस पॉलिसियों को वापस लेना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही बात है, और वो उनको एहसास भी है। मतलब जो उन्होंने जब अवाम का रिएक्शन देखा था तब भी उन्होंने इस जंग को से निकलने का फैसला किया था और गैर एलानिया तौर पे वो इसको ख़त्म कर भी चुके हैं तकरीबन। बिल्कुल। और जिसके बाद शाइया मौलाना कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ बात करना, ये सब तमाम अपनी जो वहाँ पे वैल्यू उसको रिबिल्ड करने की कोशिश। हाँ, क्योंकि अभी सर पे उनके मिड टर्म्स है तो आगे चलते हैं। मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग खबर है। वाह सर, आज तो आप खबरों के अंबार लेके आए हो। केपी के हवाले से है। जी जी। जो उनके वजीर आला हैं, उन्होंने 9 और 10 मई के जो मुकदमात हैं उन वाक़यात को फॉल्स फ्लैग कहकर अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उनके खिलाफ ही। ओके। अच्छा, वो रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ था ना वहाँ KPK में, तो वो चला गया था वो आईनी अदालत में, वफाकी आईनी अदालत में आ गया। ओके। वफाकी आईनी अदालत ने ये मुकदमात ख़त्म करने से रोक दिए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो वो अपना शवाहिद देखे हैं, वीडियोस देखी हैं और वो ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट हुआ हुआ उनका, उसमें वो साफ नज़र आ रहा है जो सुहेल अफरीदी साहब मौजूद हैं और वहाँ पे हमलावर हुए हैं। यानी उनकी सीट भी खतरे में आ रही है। सुहेल अफरीदी, हाँ, सुहेल अफरीदी साहब का मौक़िफ़ था कि 9 और 10 मई के वाक़यात ख़ुसूसन रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसमें PTI के कारकुनों को की बराह रास्त शमूलियत नहीं थी। ये वज़ीर आला KPK का मौक़िफ़ था जी। इस बयानिए को उस वक्त धचका पहुंचा जब पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की एक अहम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह साबित हुआ कि वीडियोस में नजर आने वाले सुहेल अफरीदी और PTI के कारकुनान जो अस्करी तनसीबात पर हमलावर थे, वो वीडियोस और तस्वीर दुरुस्त हैं। इन वीडियोस में रेडियो पाकिस्तान पेशावर और कोर कमांडर हाउस पर हमलों के मनाज़िर भी शामिल थे, जिन्हें मुस्तनद करार दिया गया। ये अदालती फैसला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ हक़ाइक़ पर मबनी नहीं था और जो फैसला है इन मुकदमात का वो सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि कानून की रोशनी में ही होगा, शवाहिद की बिना पे होगा। और वो जब शवाहिद आ गए हैं, जो ये मतलब जिस चीज़ का इंतज़ार होता है वो फोरेंसिक रिपोर्ट का और लिबर्टी के अथॉरिटी उसकी रिपोर्ट का ही होता है कि वो मुस्तनद है या नहीं है जो वीडियो है। तो वो उसकी बेस पे अब देखते हैं। अब वो मेरा ख्याल है कि PTI, मुझे लग रहा है कि इस रिपोर्ट को भी मुस्तरद करेगी। सर वो तो ऐसी तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर देती हैं जिनमें शवाहिद भी मौजूद होते हैं। अगर आप 9 मई की बात करें तो 9 मई से पहले आप देखें कि जितने भी इनके लीडर्स थे उनकी सोशल मीडिया पे अब तकारीर देख लें, वो तकारीर ही उलझाने वाली थी, लोगों को अग्रेसिव करने वाली थी, उनके बिहेवियर को, यानी कि आप ये कह रहे हैं काबिल नफरत तकारीर थी और उन्होंने बूस्ट किया था लोगों को, पंप किया था, लोग इसलिए बाहर आए थे। ये सब कुछ तब हुआ था। अब ये फॉल्स फ्लैग कहते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं हम? वो खैर हम क्या कह सकते हैं, कोर्ट ही कहेगी जो खबर थी हमने अभी तक पहुँचा दी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतनी इजाज़त है। यस। तो मज़ीद अपडेट्स के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविजन पाकिस्तान चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने नाज़रीन का, जिनका फीडबैक हमें मिलना शुरू हुआ है। बड़ा अच्छा फीडबैक है, थैंक यू। हम उसके तनाज़ुर में अपनी इस्लाह भी करने की कोशिश करते रहते हैं। जी बिल्कुल। इजाज़त दीजिए आशनाज़ और राशिद को।
देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविजन पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।